Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. Some of you have requested me to make a separate video on G.M. Hopkins as a poet. So I am here with this class. So Gerard Manley Hopkins as a poet, that will be the topic of our class, today's class. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. I have also posted the link in the description box. तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लो टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that many more new learners can join. Okay, so let's begin with G.M. Hopkins as a poet. This is the image of Hopkins, very important Victorian, late Victorian, early modern poet, 1884 to 1889 is Hopkins's timeline. First of all, we will look at his biographical details. G.M. Hopkins was born on 28th July 1884 in Stanford, England, also a Jesuit priest. So he was a Jesuit priest, and this is a very important thing. All of his works were published posthumously by Robert Bridges. इसका नाम बहुत आता है हॉपकिंस के साथ, जिन्होंने हॉपकिंस के सारे वर्क्स को पब्लिश किया था आफ्टर हिज डेथ. Because Hopkins burned so many books or so many writings of himself when he was alive. तो वो कई सारे वर्क बर्न कर दिया था, इसलिए बहुत कम बचा है उसके राइटिंग्स में. तो जितना भी बचा है वो रॉबर्ट ब्रिजेस ने पब्लिश किया था उसके डेथ के बाद, बिकॉज हॉपकिंस नेवर वांटेड टू पब्लिश दैट वर्क. ओके, so Hopkins studied at Balliol College, Oxford, and he invented these two important concepts. हम आगे बात करेंगे, sprung rhythm and curtailed sonnet. Hopkins was a great innovator in verse. ठीक है, तो उन्होंने दोनों टाइप के पोएम्स को डिस्कवर किया. मतलब one is a type of sonnet, that is curtailed sonnet, and another is a type of rhythm, sprung rhythm. Okay, he was greatly influenced by Duns Scotus. I hope you have heard the name of Duns Scotus. He was a great medieval philosopher. So Hopkins was very much interested in philosophy, theology, religion related topic. Okay, and he also gave these two concepts, inscape and in stress. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके मतलब क्रिटिसिज्म का पार्ट है. हॉपकिंस एज ए क्रिटिक अगर कहा जाए तो उसमें इंस्केप एंड इंस्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आते हैं. Now, what is inscape and instress? Very complex idea, but I am trying to simplify that. Inscape actually means the unique quality of an object which separates it from other object. तो इंस्केप का मतलब क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट का अगर आप इमेजिन करो इस दुनिया में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, एंड ईच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा टेबल है, कौन सा चेयर है. मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ. हम क्यों डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिकॉज टेबल दिखने में अलग है, चेयर दिखने में अलग है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. तो गॉड ने इसी टाइप से बनाया है कि हम कभी भी हम टेबल को नहीं कहेंगे कि ये चेयर है, चेयर को हम कभी नहीं कहेंगे कि ये टेबल है, बिकॉज दोनों चीज आपस में डिफरेंट है एंड दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो टेबल इज यूनिक इन इट्स ओन वे, चेयर इज ऑल्सो यूनिक इन इट्स ओन वे. सो दैट इज इंस्केप. द यूनिक क्वालिटी, जो एक स्पेसिफिक चीज है जिसके थ्रू हम दोनों चीज को या फिर डिफरेंट चीज को आपस में अलग अलग कर सकते हैं कि यस दिस इज दिस थिंग, दिस इज कैट, दिस इज नॉट रैट, दिस इज नॉट अ टाइगर, दिस इज कैट एंड दिस इज टाइगर. तो हम कैसे बताते हैं कि ये कैट है, ये टाइगर है? बिकॉज कुछ पर्टिकुलर फीचर है, कुछ यूनिकनेस है कि यही एक चीज है जो टाइगर के अंदर होना चाहिए, ये चीज है जो कैट के अंदर होना चाहिए. कभी भी हम दोनों चीज को एक साथ मिलाते नहीं. ठीक है. सो एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट or every individual creature has its own identity through its unique quality. That is actually inscape. ठीक है. Now, nature is a book written by God where each and every object has a distinctive identity. ये हॉपकिंस का मानना है
कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड इज अ मिराक्यूलस क्रिएटर, जिन्होंने कई सारे चीज को क्रिएट किया है, सबको अपना अपना ड्यूटीज दे दिया है, चाहे वो एक छोटा सा मतलब मक्खी से लेकर एक बड़ा लायन तक, जो भी आप कहो, सभी एनिमल्स को, सारे ह्यूमन बींग्स को वो अपना अपना ड्यूटी दे दिया है। एंड ईच ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है, राइट? सो दैट इज अ मिराक्यूलस क्रिएशन ऑफ गॉड एंड हॉपकिंस इज अमेज्ड बाय दैट। ठीक है, तो हॉपकिंस कह रहा है कि नेचर इज एक्चुअली अ बुक रिटन बाय गॉड। इस टाइप का बुक है, एक ऐसा बुक है जिसमें वेरियस कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर अपने एक दूसरे में, मतलब हर कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है, तो आप दूसरे कैरेक्टर के साथ उसको डिफरेंशिएट इजिली कर सकते हो। सो नेचर इज दैट काइंड ऑफ अ बुक। अब देखो इंस्केप के बारे में हॉपकिंस ने क्या कहा है, दिस इज जस्ट, ये आपको मतलब रटना नहीं है, आप बस समझ लो कि क्या चीज है। तो हॉपकिंस इज सेइंग दैट नो टू क्रिएटेड बीइंग्स आर एग्जैक्टली अलाइक, which I have just told you, and their individuality is no imperfection। कोई भी चीज imperfect नहीं है, कोई भी चीज हम नहीं कह सकते कि इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे चीज कंप्लीट बनाया है गॉड। On the contrary, the perfection of each created thing is not merely its conformity to an abstract type, but in its own individual identity with itself। That is also very important। कि हम अगर कहते हैं कि ये चीज परफेक्ट है, तो वो सिर्फ अपने मतलब बाहर की जो अपीयरेंस है उसमें ही परफेक्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो परफेक्ट इन इट्स क्वालिटी, उसमें कुछ भी चीज मिसिंग नहीं है। ठीक है, सो दैट इज हॉपकिंस इज ट्राइंग टू से, दैट इज इंस्केप। अब इंस्ट्रेस क्या है? इंस्ट्रेस रिकॉग्नाइजेस गॉड एज अ डिवाइन फोर्स हु इज प्रेजेंट अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। दिस फोर्स कंट्रोल्स एवरीथिंग इन नेचर। हॉपकिंस कह रहा है कि इंस्केप तो है जो क्वालिटी, जिसके थ्रू एक ह्यूमन बीइंग या फिर हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो। बट इंस्ट्रेस क्या है? इंस्ट्रेस एडमिट्स that yes, God is present everywhere, God is such a divine force, God is such a creator, जो अपने हर क्रिएशन में प्रेजेंट है, जो हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर है। तो हॉपकिंस कह रहा है कि चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, सबके अंदर गॉड है। गॉड ऐसे डिवाइन फोर्स सारी चीज को एक साथ और सब सब चीज को सिस्टमैटिकली वो रन करवा रहे। ये कौन कर रहा है? ये गॉड कर रहा है। किसने कहा है कि सूरज को इसी टाइम में उठना है, सनसेट इसी टाइम में होना है, अर्थ को इसी स्पीड में मूव करना है? ठीक है, दिसंबर में ही विंटर आएगा, दिसंबर में कभी समर नहीं आएगा। तो ये जो सिस्टम से चलता है पूरा का पूरा वर्ल्ड, ये सिस्टम किसने बनाया है? अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस इट इज मेड बाय गॉड। तो गॉड हमेशा उसी के हाथ में एक रस्सी है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम कोई भी इस नियम के बाहर नहीं जा सकते। हम ऐसा हमें जो मर्जी हो हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस ग्रेट रूल। सूरज नहीं कह सकता कि आज उठने का मन नहीं कर रहा है, मैं सो जाती हूँ, नहीं, अगर एक पर्टिकुलर टाइम में आपको उठना है तो आपको उठना ही है। ठीक है, तो वही बात है, वही हॉपकिंस कह रहा है कि दिस इज इंस्ट्रेस व्हिच रिकॉग्नाइजेस गॉड, God's presence everywhere in the world. Okay, I hope this is clear. Now I move on to sprung rhythm. और एक important concept है हॉपकिंस का, sprung rhythm। sprung rhythm क्या है? It imitates the rhythm of natural speech। sprung rhythm, sprung मतलब jumping। तो rhythm में ऐसा है कि आप jump करते करते जा रहे हो। If you have read any of Hopkins's poetry, you can see sprung rhythm। So each foot begins with a stressed syllable which may stand alone or be associated with some unstressed light syllable। तो कैसे चलता है? ऑल्टरनेटिव स्ट्रेस पड़ता है, फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस है, देन अनस्ट्रेस्ड, देन स्ट्रेस, देन अनस्ट्रेस, इस फॉर्मेट में चलता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉपकिंस। तो जैसा देखो, ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डे पिल्ड थिंग्स, स्पाइट ब्यूटी का ओपनिंग लाइन, ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डे पिल्ड थिंग्स। तो यहां पर भी देखो फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस है, ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डे पिल्ड थिंग्स। अगर आप इस टाइप से पढ़ो तो दैट इज स्प्रंग रिदम, कि जंप करके करके रिदम आगे बढ़ रहा है, इट इज जंपिंग। आई कॉट दिस मॉर्निंग मॉर्निंग मीनियंस किंग, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विंड होवर।
The scours kite cringe and the blear share come. This is the rake of Duchess land. हम सारी पोएट्री को आगे पढ़ने जा रहे हैं. So these are examples of sprung rhythm. कई सारे poems में. Okay. Now the first important poem, the rake of Duchess land, 1875-76 में it was written. मैं यहाँ पर जो भी आपको ईयर बताऊंगी ब्रैकेट में वो सारे के सारे रिटन ईयर है बिकॉज सभी वर्क पब्लिश हुआ था पॉस्ट्यूमसली बाय रॉबर्ट ब्रिजेस. तो 1875-76 ये सारे के सारे जो ईयर्स है ये सारे के सारे ईयर्स राइटिंग ईयर है नॉट पब्लिकेशन. ठीक है, तो एक साथ ही पब्लिश हुआ था एक कलेक्शन. तो रेक ऑफ डचेस लैंड 1875-76 इट वाज रिटन. इट वाज एक्चुअली एन ओड रिटन इन 35 स्टैंजास. And this is important, it inspired Anthony Burgess' novel, The Clockwork Testament. Not The Clockwork Orange. This is a different novel. Okay, Clockwork Testament. Now, इसका plot क्या है? In a snowstorm on 6th December, इसे दिसंबर का कहानी है, ठीक है. In a snowstorm on 6th December 1875, the Duchess Land emigrant ship was wrecked. So it was a story of shipwrecking, real story. And as a result of that, 5 Franciscan nuns were died. तो आप कह सकते हो कि एक टाइप का एलिजी भी है at the memory of those 5 Franciscan nuns who died due to shipwreck. And it was the first poem written in sprung rhythm. This is very important. First sprung rhythm Hopkins ने employ किया इसी poem में, The Rake of Duchess. Okay. नेक्स्ट वर्क है गॉड्स ग्रैंडर. वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. आई होप यू हैव ऑल रेड इट बिकॉज ये अक्सर सिलेबस में होता है. गॉड्स ग्रैंडर, पाइट ब्यूटी, विंड ओवर, ये बहुत ही पॉपुलर पोएम्स है हॉपकिंस का. अगेन 1877 में इट वाज रिटन गॉड्स ग्रैंडर. ओके, तो इसमें क्या है देखो, टाइटल ही है गॉड्स ग्रैंडर. इट इज एक्चुअली एन इटालियन सोनेट, मतलब इटालियन फॉर्मेट में ये बेस्ड है. ठीक है. The speaker describes that God's presence is central to human life. It is like an electric current. वही concept जो हमने इंस्ट्रेस में बताए हैं. Hopkins is saying कि God is actually the central thing of human life. God सभी चीज के सेंटर में है. And God किस टाइप का है? God is like a current. जैसे क्या होता है कि मशीन चलता है, अगर उसके अंदर करंट का फ्लो प्रॉपरली होता है, अगर पावर सप्लाई सही तरीके से होता है, तो मशीन बहुत अच्छे से काम करता है. सिमिलरली द होल वर्ल्ड इज लाइक अ मशीन जिसका मेन पावर सप्लाई है गॉड के हाथ में. वो कहीं भी चाहे तो स्विच ऑफ कर सकता है, स्विच ऑन कर सकता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड चलता है. ठीक है. So that is Hopkins is saying that God's presence is central to human life. It is like an electric current. And he laments that right now human beings are becoming alienated from God. Because अभी human beings के अंदर corruption बढ़ रहे हैं, जो sins है वो बढ़ रहे हैं, and क्या हो रहा है, gradually they are getting alienated from God. Their feet are not touching the ground, which symbolizes arrogance. Human beings are getting very, very arrogant. They are neglecting everything. They are denying everything. Even they are openly confronting the existence of God. So they are getting corrupted. They are getting alienated from God. Hopkins is lamenting that kind of state. But the poet keeps faith on the regeneration cycle of God. Again, God will take control of everything. ठीक है. तो जैसे जो भगवत गीता ने भी मेंशन है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या होता है कि कभी कभी देश में अनाचार बढ़ जाते हैं, कभी कभी देश में करप्शन बढ़ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण वापस आते हैं, जो श्लोक में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तो वही बात कह रहा है कि whenever the whole India or the whole world will emerge in sin, then परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, भगवान श्री कृष्ण वापस आते. तो वही बात देखो हॉपकिंस भी कह रहा है कि हॉपकिंस कीप्स फेथ ऑन द रीजनरेशन साइकिल. ठीक है, कि ये जो साइकिल है ये मतलब चल रहा है, कुछ टाइम अच्छा समय आते हैं, उसके बाद बुरा समय आते हैं, तो ये एक साइकिल की तरह चलता है. एंड कभी कभी ह्यूमन बींग्स बहुत ही डीप में, बहुत ही करप्शन में चले जाते हैं. तो ये भी लाइफ का ही एक पार्ट है, एंड इसी के थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द होल वर्ल्ड विल बी प्यूरिफाइड वंस एंड गॉड विल टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. तो जो आपके नोआज आर्क, मतलब जो ग्रेट फ्लड का कॉन्सेप्ट है बाइबल में, उसमें भी वही है. व्हेन होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सिन, तब भगवान ने क्या किया, उन्होंने एक फ्लड दे दिया कि फ्लड के थ्रू सारी चीज हो जाए, सभी जो सिन है वो वॉश आउट हो जाए, देन द वर्ल्ड विल बी रीजनरेटेड.
अर्थ विल बी रीपॉपुलेटेड, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड विल बी रीपॉपुलेटेड। सो वही बात कह रहा है हॉपकिंस भी। द पोएट कीप्स फेथ on the regeneration cycle of God, that God will take control of everything. That is why God's grandeur, ठीक है, okay. Next poem है The Windhover, another very important poem. I found the morning's minion, जो opening line है 1877 में it was written. The Windhover. Windhover is actually a bird. ठीक है, it was dedicated to Christ our Lord. ये नेट एग्जाम का क्वेश्चन था कि डेडिकेशन किस टाइप से लिखा गया है, मतलब इसके बीच में एक ऑप्शन में कॉमा था, एक ऑप्शन में यहाँ पर कॉमा था, एक ऑप्शन में सारी चीजें स्मॉल लेटर में था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कोई कॉमा नहीं है। टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड, दैट इज द डेडिकेशन, डायरेक्टली ऐसे ही लिखा है। तो डेडिकेशन किस टाइप से लिखा है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The Windhover. Windhover is a bird who can fly in a high level from where it can scan the places of prey. बहुत ही ऊंची लेवल में वो उड़ सकते हैं विंड ओवर। एंड एक्चुअली विंड ओवर इज अ मेटाफोर ऑफ क्राइस्ट। वही पैनोप्टिकॉन की तरह आप समझो कि पैनोप्टिकॉन में भी क्या होता है कि एक पर्सन ऊपर बैठा होता है जो ऊपर से सभी लोगों को देखते हैं कि जो प्रिजनर्स है वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही जो पैनोप्टिकॉन का आइडिया था थ्योरी में, वही बात यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है कि विंड ओवर एक ऐसा बर्ड है जो सबसे ऊपर लेवल में फ्लाई करता है एंड वहां से वो नीचे में क्या क्या चीज हो रहा है वो सारी चीज को सर्वे करता है। सिमिलरली क्राइस्ट इज लाइक दैट, गॉड इज लाइक दैट। गॉड इज सिटिंग इन हेवन, ऊपर से वो सभी चीज को देख रहा है। एंड हम ये क्या कहते हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा बट भगवान सबको देख रहा है। सो दैट इज अगेन दैट काइंड ऑफ पैनोप्टिकॉन स्ट्रक्चर कि प्रिजनर नहीं देख पा रहे कि ऊपर कौन है, बट वो हमेशा मतलब डर में रहता है कि कोई शायद देख रहा है तो हमें कुछ गलत काम नहीं करना। So that is the existence of God. He is everywhere there is CCTV employed by God. ठीक है, सारी जगह में गॉड के सीसीटीवी है एंड गॉड ऊपर से सबको देख रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉड का सीसीटीवी है। तो गॉड एक हेवन में एक जगह में गॉड बैठकर सभी चीज को नोटिस कर रहा है एंड जहां पर भी कोई भी गलत काम कर रहा है गॉड उसको पनिशमेंट दे रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एन इमेज इज क्रिएटेड बाय हॉपकिंस, दो डायरेक्टली पैनोप्टिकॉन का मेंशन नहीं है। स्टिल यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो पैनोप्टिकॉन के आइडिया के साथ कि विंड ओवर इज दैट काइंड ऑफ ए बर्ड हु इज फ्लाइंग at the higher level of atmosphere, and from that it can watch everything in the ground. Okay, now the bird appears as morning's minion. It's a beautiful bird. Minion का मतलब यहाँ पर है darling, मतलब very dearest. So morning's minion, the darling of morning, Windhover को वो कह रहा है, very dearest and brightest. The poet compares the bird's movements to the sacrifice of Jesus. Very important. That is why it's a religious poem. And the striving of individual for religious life brings out his or her inner glow. That is the purpose. That is the main theme of the poem. कि अगर आप रिलीजियस लाइफ लीड करते हो, अगर आप ऑनेस्ट तरीके से अपना जिंदगी जीते हो, तो आपके अंदर की जो ब्यूटी है, जो पोटेंशियलिटी है, वो अपने आप बाहर आएगा। So that is actually the theme of the poem, that if individual strives in proper way, if individual strives in religious way, then he or she can flourish very brilliantly and dazzlingly with his or her own beauty. Beauty मतलब not outsider beauty but your inside potential. तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हॉपकिंस के सारी पोएम्स अगर आप पढ़ो तो वेरी ब्यूटीफुल राइटर एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो। ओके, नाउ next poem is Pied Beauty, another very important poem. I hope you have read it. ठीक है, तो Pied Beauty 1877 में it was written. तो Pied का मतलब है कलरफुल, ठीक है। इट वाज अ कार्टेल्ड सोनेट। कार्टेल्ड सोनेट का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली इसमें 10 एंड हाफ लाइन है, ठीक है, मतलब 10.5 लाइन का एक सोनेट है। कुछ कुछ बुक में आपको 11 लाइन्स भी मिलेगा। तो नॉर्मली सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स का होता है। कार्टेल्ड सोनेट मींस इट इज एक्चुअली शॉर्टेंड। कार्टेल का मतलब है कि कट कर शॉर्ट कर देना। तो हॉपकिंस ने इसको शॉर्ट कर दिया, 10.5 लाइन का सोनेट कर दिया, या फिर इसको राउंड फिगर में कहा जाता है 11 लाइन का सोनेट। दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। कुछ बुक में आपको 10.5 लाइन मिलेगा, कुछ बुक में आपको 11 लाइन मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली 14 लाइन की जगह वो 11 लाइन में सोनेट को एक डिफरेंट राइम स्कीम में वो डाल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई कर्टेल्ड सोनेट। सो पाइड ब्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ कर्टेल्ड सोनेट।
It is actually celebrating the colors of nature. Very bright concept, colors of nature. And the poet is praising God. Again वही inscape interest का idea यहाँ पर भी आ रहे हैं. Praising God for creating varieties of things in nature. Yes, God has created so many things throughout the world. कई सारे चीजें उन्होंने बनाया है एंड सभी चीज का अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, जो नॉर्मली जिस पर्टिकुलर चीज को हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट मानते हैं उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है. ठीक है, द पोइट इज प्रेजिंग गॉड फॉर क्रिएटिंग वैराइटीज ऑफ थिंग्स इन नेचर एंड ऑल्सो ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूनिकनेस इन स्केप इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. हर चीज का कलर अलग अलग है. वेरी इंटरेस्टिंग. हम कलर से भी एक चीज को दूसरे चीज से अलग कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनस्केप, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. बट एवरीथिंग हैज ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. वही बात जो इन स्ट्रेस में उन्होंने बताया है कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. इन एवरीथिंग इन नेचर गॉड इज प्रेजेंट. तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डे बिल्ड थिंग्स. एंड ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि कौन कौन सी चीज में उन्होंने देखा है कि कलर का वैरायटी है. वो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं. एंड फाइनली ही इज प्रेजिंग, ही इज थैंकफुल टू गॉड दैट यस ही इज अलाइव टू सी ऑल दोज मिरेकल्स, ऑल दोज ब्यूटीज. तो थ्रू आउट हॉपकिंस के जितने भी पोएम्स हमने देखा है सारे के सारे रिलीजियस थिंग्स के ऊपर बेस्ड है. ओके, उसके कुछ और इंपॉर्टेंट पोएम्स है. अ ग्रुप ऑफ 6 सोनेट जिसको टेरिबल सोनेट कहा जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इन नेट कि हु इज द ऑथर ऑफ टेरिबल सोनेट. तो 6 सोनेट इसके अंदर है. इसके अंदर क्या है, थीम ऑफ डिसोलेशन, रिलीजियस एंग्विश का थीम है इसमें. ठीक है, सो थोड़ा सा डार्क थीम के ऊपर ये सोनेट बेस्ड है. दैट इज वाई टेरिबल सोनेट. एंड टेरिबल सोनेट का जो कॉपी है फाउंड आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, एंड ये रॉबर्ट ब्रिजेस मतलब पहले उसको नहीं मिला, बहुत ढूंढने के बाद ये कॉपी उनको मिला था, टेरिबल सोनेट का कॉपी. तो कौन कौन से 6 सोनेट है यहाँ पर वो नेम्स मैंने मेंशन किया है. टू सीम द स्ट्रेंजर, आई वेक एंड फील पेशेंस, माई ओन हार्ट, कैरी ऑन कंफर्ट, नो वर्स्ट देयर इज नॉट. These are the names of 6 sonnets. And another notable thing is that हॉपकिंस ने इस सोनेट का नेम्स नहीं दिया था, एनोनिमस था. मतलब एनोनिमस मतलब अननेम्ड सोनेट था, नॉट एनोनिमस, अननेम्ड सोनेट था. सोनेट का मतलब प्रॉपर नंबर भी नहीं था, उसके कोई टाइटल भी नहीं था. ये जितने भी टाइटल्स हम बात कर रहे हैं ये रॉबर्ट ब्रिजेस ने दिया था एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन. तो फर्स्ट लाइन से कुछ कुछ वर्ड लेकर ये टाइटल उन्होंने खुद बनाया था. एक्चुअली हॉपकिंस ने कोई टाइटल नहीं दिया था, अननेम्ड सोनेट्स था. ठीक है, अनटाइटल्ड सोनेट्स था. Okay, another work is Spring and Fall 1880. Another work is Binsley Poplars 1879. ये पहले होगा 1879, then 1880. Okay, so these are the other poems of Hopkins, but these are not so important. Terrible sonnet आप बस स्टार में याद रखना कि किसके साथ एसोसिएटेड है एंड कौन कौन से सोनेट है. इसके डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स आर दीज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फाइट ब्यूटी, गॉड्स ग्रैंडर, विंड ओवर, ब्रेक ऑफ डचेस लैंड. दीज आर द इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ Hopkins. Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for watching. This is the link of my Telegram channel. So आप join कर लो to get notification of all important classes. And thank you all. See you soon in the next class. Have a nice day. Bye.